अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए साल के मौके पर प्रोग्राम तारों से करें बातें का ये खुसूसी शो लेकर आपकी खिदमत में उस्मा नौमान हाजिर है। GNN TV और प्रोग्राम तारों से करें बातें की टीम की जानिब से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन व सलामती और खुशियों का साल साबित हो। आमीन आमीन। अपने मेहमानों को तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब। मुअज़्ज़म खान साहब के बारे में आपको ये मैं बता दूं कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से 5 किताबें लिखी हैं और नेपाल से खुसूसी तौर पर इन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है। वाह, ये तो फिर साडे मुल्क दे डॉक्टर स्ट्रेंज होए ना, वो भी नेपाल जाके चेंज हुए सन। हाँ जी, वो हाथ नाल इंज करके गोले बनाते सन ते ए लोकां दे जायचे बनाते ने। अपने दूसरे मेहमान का तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे अगले मेहमान भी एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर बाबर बिन दिलावर। हमारी नेक्स्ट मेहमान हैं एक मशहूर सिंगर आयरा उमर। कैसे हैं आप आयरा? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. अरे खुल के बोल, तेरी सस ने तवीज़ की है तेरी? मेरी सास ने मेरे पे तावीज़ नहीं किए, मेरे फैंस ने किए हुए हैं। मम्मी डैडी कुड़ियां उस्मा जी इंज ही बोलदियां ने, हेलो हाउ आर यू, फाइन, नाल ही भुख लग जाती है। आ मेरे लिए आलूआं वाला पराठा मंगाओ, बहुत ढिड दे विच खिचा पैण डईयां। मेरे बाएं जाने तशरीफ रखते हैं शहनशाह कव्वाली और मारूफ सिंगर शेर मियां दाद साहब। उनके साथ ही तशरीफ फरमा है मारूफ एक्ट्रेस और खुबरू मॉडल जवेरिया। बस इसे गल दा धोखे जवेरिया खान साहब के साथ बैठी हुई है। क्यों समझा के भेजा करो ना। सर, आप लोगों से भी मैं गुफ्तगू का भी आगाज़ करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम बुला लेते हैं यहाँ पर एक आवारा पार्टी को जो कि मुख्तलिफ खुशी के मौक़ों पर डांस पार्टीज करती हैं और लोगों की सारी खुशी किरकिरी करती हैं। ज़रा उनकी भी क्लास लेते हैं, तो आए जनाब। अच्छा, दोनों गा रहे सन, ए विचला भौंक रहा सी। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾ ਲਿਆ? ਕੀ? ਬੀਵੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣ। 11 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਆਈ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਬਸੁਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਨਾ ਹੀ ਉਜੜਿਆ। ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਆ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਆਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਨ ਕੋਆਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 55 ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਉਤਲੀਆਂ 5 ਚੁੱਕ ਲਾ। ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਓ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਦੋ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੋ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੁੱਢੀ ਬੱਕੂ ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਗੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪੀਪਣੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਚੀਕੂ ਪਾਕਾ ਚੂਕੂ ਚੀਕਾ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਕੇ। ਦੋ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਭਾਈ ਤਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਸੱਜਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਵਾਜੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਆਹੋ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਚੋਂ 5-6 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਹਫਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਆਹੋ। ਖਾਲੇ ਦੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਸੇਕਿਆ ਗਿਆ? ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਰਮਲ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਲਾਂਤੀ ਆਓ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਾ ਲਾਂਤੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੂਹਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸ਼ੋਕੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਵੇ ਕੀ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਸਤਾ ਪੀਸ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਆਹੋ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਕੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਆਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਲੰਗਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ। ਆਏ ਬੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਲੂ ਲੈ ਲੋ, ਆਲੂ ਲੈ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੰਗੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਐਨੀ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਪਸਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੋੜ। ਐਨੀ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਪਸਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੋੜ। ਅੰਗਗੇ ਦਾ ਪੀੜ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਟਕੋਰ। 15 ਕਿਲੋ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਹੋਰ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾ। ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੀ। ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ। ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਚੋਰ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਆਹੋ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਲੰਗਰ ਖਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ? ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਲੈ ਰੋ। ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਬਾੜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ? ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਵੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ? 3 ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਈਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 AC ਲਿਖਤੇ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਬਣ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। अच्छा। मैं घर गया तो एट तो साबुन लिखे अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, बगैर नाच गाने के और हल्ले गुल्ले के आपकी कोई तकरीब नहीं होती? ओ मैडम सानू ते डांस पार्टियां दी आदत है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਾर्टी रख ਲਈ। अच्छा खुशी मनाने के और भी बड़े तरीके हैं। ये शरबत खंग पीकर रातों को सड़कों पे नाचना, गाड़ियों के बोनट पे चढ़ के नाचना, ये कौन सा तरीका है? एक बात की खुशी हुई है। किस बात की? इनको शरबत खंग का भी पता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਲੇਗਾ। ये जो आप नशा करके पार्टीज करते हैं, आपको पता है इसकी वजह से कई नौजवानों की जान भी चली जाती है, तो क्या जिंदगी और सेहत का रिस्क लेना जरूरी होता है? हर कोई नहीं हो मरदा जेड़ा ओवरडोज करदा, ओह ही देखो मरदा, ओह ही देखो मरदा। ओ जो तेरे फुफड़ दा नाम छड़ दे ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ। घर में आपके माँ बाप आपका इंतजार कर रहे होते हैं और आप सड़कों पर या तो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं या फिर इस तरह की बदतहजीबी कर रहे होते हैं। कभी अपने वालिदैन का ख्याल आया है कि वो क्या सोचते होंगे? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤੇ ਖੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਓ ਬੁੱਢੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ ਉਡਾਈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ, ਅੱਜ ਤੁਣਕੇ ਤੇ ਤੁਣਕਾ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਚਬਲਾਂ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਤ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप नए साल पर तारों से करें बातें का ये खुसूसी शो देख रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौजूद साहब, हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, 2 बातें बिल्कुल बड़ी क्लियर है कि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन राहु कंजक्ट होगा, जुपिटर अपनी जगह चेंज करेगा, तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो 3-4 महीने होंगे इसमें सिस्टम चेंज होने के बहुत सारे चांसेस। जब हम सिस्टम चेंज कहते हैं तो ये पॉलिटिकल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, जिसमें जैसे फ़र्ज़ करें कि इस वक्त जमहूरियत है, इट कैन बी ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अच्छा मौज़म साहब, ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बता दें, हुकूमत रहेगी या चली जाएगी? खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं? जब इमरान खान इंडिविजुअल की बात होगी तो फिर उनकी जो 2 डेट्स ऑफ बर्थ होंगी तो उनसे एनालिसिस नहीं किया जा सकता। क्लियर? जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, जब पाकिस्तान का हॉरोस्कोप पढ़ते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं उसी में आकर कह रहा हूँ कि उसमें सिस्टम चेंज होने के बहुत सारे इम्कानात होंगे। जब सिस्टम चेंज होता है तो जो करंट सिनेरियो होता है इसमें एक दफ़ा ब्रेक ज़रूर आती है। अच्छा। तब नया सिनेरियो स्टार्ट होता है। यानी आपका मतलब ये है कि हुकूमत जा रही है? मैंने जो कम कहा आप उससे ज़्यादा समझे। मेरा ख्याल है इन्होंने कोई अंदरूनी खबर एस्ट्रोलॉजी नहीं। जवेरिया, ये जो आजकल जुपिटर है ना, ये जब ज़ोहल के हसार में आता है ना, तो ये जो गुलीला स्टार है जो दुमदार वाला, ये बादलों में यूं फंस करना, जब चांद के बीच में से निकलेगा ना तो मेरी तुम्हारी मंगनी होती। ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਤਾ जी। जवेरिया, मार्च में इनसे मंगनी ना करना, हो सकता है जून इनके लिए जानलेवा साबित हो। या फिर मेरे दुश्मनों के लिए। वैसे जितनी स्टार्स की गेम आपने मुझे बताई है, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला आपका स्टार क्या है। ਇਹ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਹਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਕਰ ਟੈਪ ਹੈ ਸੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਾ ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੜਦੇ ਬਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ फिर तो मैं आपसे शादी के लिए बिल्कुल नहीं एग्री। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਜੂਡੀ ਦਾ आप तैयार हो ना हो मुश्तरी कह रहा है कि ये चालें मेरे साथ शादी पे तैयार हो Oh my ਇਹ God। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। हाँ कर लो जल्दी से इधर से भी इशारे आ रहे हैं जोहल आप के प्लीज उधर हाँ कर दें। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਮਗਾਦੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ बाबा साहब आपको क्या लगता है हुकूमत रहेगी या चली जाएगी? वजीर आजम इमरान खान साहब रह सकेंगे या वो भी चले जाएंगे? इस साल में तरीके अदम एतमाद आएगी, अच्छा लेकिन उसका इमरान खान की गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान ये पूरा साल कम अज़ कम गुजारेंगे अच्छा बतौर प्राइम मिनिस्टर। ਲੋ ਜੀ ਦੋ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਡਾਉਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ की रीज़न ये है कि यूनानी और इंडियन दोनों नजूम के हिसाब से मरीख को बड़ी अहम पोजीशन हासिल हो रही है, मरीख सियारे को, और इमरान खान का बाई नेम जो प्लानट है वो मरीख है, जिसको इस साल में अगेन बतौर वज़ीर आज़म यूनानी इल्म नजूम में दर्जा मिल रहा है, अहमियत मिल रही है, इसलिए इस साल कम अज़ कम वही प्राइम मिनिस्टर है। यानी शेख रशीद जो कह रहे हैं कि इमरान खान 5 साल हुकूमत करेंगे वो करेंगे? नहीं, मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अच्छा आप सिर्फ 1 साल यानी आप चौथे साल की बात इस कर साल रहे की हैं। बात कर ਐ ਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਖਤਰਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਤਰਾ ਹੈ शेर मियां साहब आप बताइए नए साल से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? देखिए जिस तरह इन्होंने फरमाया तो अच्छा ही लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं और जो पिछला साल गुजरा है बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कवाली नाइट तो बहुत अच्छा ही रही और अभी भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो यही है कि कवाली को आगे लेके जाना है क्योंकि इसका माशाल्लाह इस वक्त कवाली का भी अरूज है। आपको पता है जगह जगह पे कवाली नाइट्स मुनक़िद हो रही हैं और ख़ास तौर पे टाइम नहीं मिल रहा अब तो उसके लिए बस मैं यही मैं कह रहा हूँ कि हम जितने भी दौर हाज़िर के कवाल हैं ये एक ही वही रिपीट पे न लगे रहे कि 7-8 कवालियाँ याद की और कुछ वो नया भी लाएं। तो कुछ नया लाए तो इसलिए मैं अपने स्टूडियो में सूफी स्टूडियो के नाम से है तो इंशाल्लाह ताला इसी जनवरी में अल्लाह के हुक्म से नया सुनने को मिलेगा आपको। ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਓ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ सारी उम्र। मज़हर साहब आप भी ज़रा नए साल के प्लान्स शेयर करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं अभी? बहुत कुछ है जी। इंसान जो सोचता है बेहतरी के लिए सोचता है, अच्छे के लिए सोचता है। जिस तरह इन्होंने इतनी अच्छी मौजूद हमने बातें की हैं कि आने वाला जो साल है हमारे लिए बहुत कुछ लाएगा और खुशियाँ अल्लाह ताला पूरी दुनिया में खुशियाँ आएँ इंशाल्लाह और हम तरक्की करें क्योंकि पिछले जो साल गुजरे हैं वो तो जैसे गुजरे हैं तो इस तरह बहुत सारे मैंने करके प्रोजेक्ट का रखे हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग भी हैं, इसमें हल्ला गुल्ला वाले भी हैं। जिस तरह मेरा अपना एक स्टाइल है कुछ हो चुके हैं, कुछ अल्लाह ताला क्योंकि मैं लिखता खुद हूँ ये सारा कुछ करता हूँ तो सोचते रहते हैं कोई ना कोई जैसे जैसे आमद होती रहेगी लिखते सोचते रहते हैं कुछ तो कुछ अच्छा हो। पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से ख़ित्ते में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर अगर हम फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उस हवाले से ये साल कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहले ये है कि हम पहले पाकिस्तान को पढ़ें। पाकिस्तान की जो बाय बर्थ प्लानिटरी कंडीशन है 14 अगस्त में उसमें ये है सन इन लियो, अब मरकरी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो और जो केतु है वो है स्कॉर्पियो में और राहु टॉरस में है और मून एंड जुपिटर कैंसर में है। सबसे पहले ये कंडीशन है
कि जो पिछले साल गुजरे हैं इनमें सारी साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आई हैं, आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ साइकोलॉजिकल मेकअप तक बात रही है। तो आई थिंक ये जो 2022 स्टार्ट होगा ये बड़े डिफरेंट एंगल पर स्टार्ट होगा और ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस आएंगे गवर्नमेंट के लिए भी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, जिससे हमें लगा कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। बहरहाल मैं जो कहता हूँ, समझता हूँ कि 2022 ये पाकिस्तान की तारीख में बड़े सालों के बाद वो पहला साल होगा जहाँ से हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी। तो आई थिंक मजमूई तौर पर 2022 पहला सेशन अगर हम गुजार लें तो मजमूई तौर पर ये बेहतर ही है और डेवलपमेंट पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। आई डोंट थिंक कोई ऐसे नेगेटिव इवेंट्स होंगे। शुक्र है किसी ने कोई पॉजिटिव गल की थी, नहीं तो हर साल दे शुरू च जिन्ने साढ़े पॉमस ही कह रहे ये साल बड़ा खतरनाक है। अल्लाह खैर ही करे इस हुकूमत के लिए। 2 महीने तो बहुत ही खतरनाक है, शायद इसमें किसी की जान भी जा सकती है। बस तौबा, शुक्र है कोई अच्छियां गल्लां कीतियां, तुसी भी अच्छे लगन लग पे। बाबा भी पहले एस्ट्रोलॉजिस्ट हुंदा सी। एक बंदे ने कुर्बानी ली बकरा लिया, उन्हें कहा कैसा है, कहना तेनू टुड्डा मारेगा या ना करी। मधु साहब ये दसो कि 2022 च शादियां ते वाजे वाले ਨੂੰ बुक ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नवीं गड्डियां ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ 2022 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੇਗਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ 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 ਪਾਪਾ। अजीम विक्की साहब तो होने वाला सी, इन्होंने दे बाल साहब किसी स्टॉलियों को गए कि मेरा बच्चा किस तरह का होगा, उन्होंने कहा जी होएगा इंसान लेकिन लगेगा बांदर। बाबर साहब, आपसे अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका इल्म क्या कहता है, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल कैसी रहेगी, खित्ते की सूरत हाल कैसी रहेगी, इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से किन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है और मुआशी सूरत हाल कैसी रहेगी? तो 2022 को आप ऐड करें तो 6 बनेगा। 6 जो है वो प्लैनेट ज़ोहरा का नंबर है। इसको हम वीनस कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, इसको हम मोहब्बत का प्लैनेट कहते हैं, इसको हम रक्स की देवी भी कहते हैं। वाह! तो ये साल जो है प्यार, मोहब्बत, अमन का साल है। इसमें बैनुल मज़हब अमन की बातें होंगी, इसमें पीस की बातें होंगी। हफ्ते का दिन इस साल का आगाज़ है, तो उसका मतलब यह है कि इस सारे साल पर सैटरडे का और सैटर्न का असर भी रहेगा। उसका मतलब यह है कि इस साल में पाकिस्तान के बुरे सियासतदान फारग हो जाएंगे। इस साल में एक महाकाल योग भी आ रहा है 28 फरवरी को, बहुत सारे सियारे एक बुर्ज में इकट्ठे हो रहे हैं। उसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान की सूरत मई में कुछ ऐसी सूरत इख्तियार कर सकती है कि जो कि वर्ष होगी, खतरनाक होगी, जिससे हम पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, ईरान और उसके हमसाया ममालिक मुतासर हो सकते हैं। तो अभी से उसकी प्लानिंग करनी होगी। पिछली OIC की जो मीटिंग हुई है उसमें भी यही बात तय की गई थी कि वहाँ पर कोई इंसानी अलमिया और ग़िज़ाई अलमिया ना आए, उसके लिए मज़ीद कोई अलमिया ना आए, उसके लिए अभी दुनिया को प्लानिंग करनी होगी। उसके साथ साथ वो ऐसा वक्त है कि दुनिया में कहीं भी बड़ी जंग, जो कि आलमगीर तो नहीं होगी लेकिन बड़ी जंग है, उसका खतरा हो सकता है। नेटो की फोर्सेस और रशिया आपस में टकरा सकते हैं। इस तरह से तुर्की के मामला जो हैं अपने हमसाया ममालिक से या इवन रशिया से भी बिगड़ सकते हैं। बाबर साहब पेशिन गोइयां करो, साडा तरा ना कड्डो। ठीक है जी। उसके उलट पाकिस्तान जो है उसके प्लानट बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो प्लानट हैं वो इस तरह की सूरत इख्तियार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पर प्राइसेस में इस्तेकाम आएगा। डेफिनेटली मई के बाद ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और अपने मुल्क के अंदर कारोबार की बेहतरी से इनके हालात बेहतर होने वाले। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर माशी हालात जो हमारे बेहतर होने वाले। जवेरिया, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये साल लव मैरिजेस का साल है, आपका कोई प्लान है इस साल? हाँ बिल्कुल, मेरा भी इसी साल शादी का प्लान है, मिड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह। अच्छा, मिड ऑफ द ईयर आप भी लव मैरिज करेंगी? लव मैरिज का तो अभी कंफर्म नहीं है, बट मैरिज कंफर्म है। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, दुनिया को छोड़ेंगे, रस्मों को तोड़ेंगे, दिल ने किया फैसला, साथी मुझे मिल गया। उन्हें ए क्या मैं मैरिज करांगी, ए किते क्या कि मैं किसी ढारी नाल करांगी, इन्ना खुश हो रहे ओ पसंद आ जावे ते ढाड़ी ते की, मैं कहना प्यार दी गल है ना। वैसे आपका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मिल गया,
ਸਾਥੀ ਤੁਝੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ। नहीं, मेरे खानदान की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मेरी शादी का जिक्र होता है सारा खानदान गाने गाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੀ ਸਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਨਕਾਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤੋਰੋ ਫਿਰ। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਵੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾए। लव की बातें चल रही हैं, टीनेजर्स को बातें करने दें। जवेरिया देख रही हैं आप, काफी सारे उम्मीदवार तो यहीं पर मौजूद हैं। बिल्कुल, एक ने तो मुझे मेरे सामने प्रपोज भी कर दिया है अभी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। इधर मैं ध्यान डालना नहीं चाहती। बस जाते हुए ना अपनी मामा का नंबर दे देना, मैं आपकी मामा से ही बात करूंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ। चाचा या कर यार, तेरा एक कमरे का मकान है, सारा टब्बर खलो के सुता ना है करके। बात लव की हो रही, आप फिर गुर्बत खाने घुस रहे हैं। भाई जब गुर्बत खाने खुलेंगे तो गुर्बत खाने तो खुलेंगे ना। मैं तो स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा जवेरिया को। हाँ, खुद कभी गली की नुक्कड़ तक नहीं गए होंगे। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। आयरा, हमने सुना है कि आपने अपनी एल्बम का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया है। इस साल हम आपके गानों की वीडियोस भी देख सकेंगे? Yeah, I'm working on my new tracks. Inshallah, I hope you would like that. तो क्या हम आपके गानों की वीडियोस भी देख सकेंगे? Yeah, sure, why not? मॉडल कौन होगा, आप खुद? मैं खुद। अच्छा, गाएंगे भी खुद? इनके साथ मैं कैमरामैन, क्योंकि इनके साथ एक जानवर भी होता है ना पकड़ा होता। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ, 70 माडल नहीं लेना। चुप करके बैठ। अच्छा आयरा, ये बताएं किस तरह का म्यूजिक है, किस तरह के गाने हैं जो हम love songs। अच्छा, Yeah. आप 2022 लव दा साल आ ते लव सॉन्ग ही मेरे दे अच्छे तो लगणगे। फिर आपका तो कोई चांस नहीं है ना। कोई बाप बेटी का सॉन्ग होता तो शायद कोई चांस बन भी जाता। ਲਵ Song ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर तेनू लत भी तड़ाउणी पैगी क्योंकि कैदो लगड़ा सी। आयरा कह दो इनको, कह दो। क्या कह दूं? कितनी मासूमियत से तुम मुझे देख रही हो, किसी को पता ही नहीं चल रहा। मैं हुई मासूम। मुझे तो पता है। हाँ, आपके हाथों में जवान जो हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप नए साल पर तारों से करें बातें का ये खुसूसी शो देख रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुअज़्ज़म साहब, नून लीग का क्या स्कोप नजर आ रहा है? मियां साहब वापस आएंगे? शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आने वाले साल में? मरियम नवाज साहिबा के हवाले से क्या सोच ये रहे हैं? आपका जो क्वेश्चन है, ये इसके 3 बेसिकली सेक्शंस बनते हैं। सबसे पहले जो है कि नवाज शरीफ मीन नून लीग, एन इज फॉर नवाज, तो नून लीग का तो कोई फ्यूचर नहीं होगा। इससे मुराद ये है कि नवाज शरीफ का अपना ज़ाती कोई फ्यूचर नहीं होगा। ठीक, फिर क्योंकि पाकिस्तान में जमातें ही 3 हैं, तो ये नहीं हम कह सकते कि वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब वो उनका जो नवाज शरीफ है वो सिनेरियो क्रिएट हो अलग हो जाएगा, बाकी लोग वहीं रहेंगे। ठीक, उनका ये जो कमिंग सिनेरियो होगा इसमें पॉलिटिकल एक्टिवेशन तो रहेगी, वो पहले भी है। दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ वो कोई ऐसा रोल प्ले करें, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, इसके चांसेस कम हैं। अच्छा, अब थर्ड सेशन है कि मरीम नवाज क्या वो रोल प्ले करेंगी? आई डोंट थिंक कि उनका कोई रोल इस सिनेरियो में। अच्छा, यानी ना तो मियां साहब का कोई फ्यूचर है, नो, ना मरियम साहिबा का कोई फ्यूचर है, और ना ही वो शहबाज शरीफ साहब का कोई फ्यूचर बनने देंगी। हाँ, अब ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। 3 सैशन तुसी इको सैशन च मुकाते नहीं। अच्छा मुअज़्ज़म साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद वो वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी होगी? आई थिंक कि ये जो इस वक्त तक रूमर्स हैं बहुत तेज़ हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये रूमर्स जो है को कम होती चली जाएंगी, और मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि ये डिसीजन वो प्रॉपरली आएंगे और आकर कोई रोल प्ले कर सकेंगे। इसलिए उनका आना भी 50-50 होगा। अगर आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन आगे जाकर बढ़ेंगे। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? जब भी आंदा इलेक्शन होंगे पंजाब में वो अक्सरियत में आएंगे, लेकिन इस साल में नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद मुश्किल है।
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का जैसा रोल पिछले सालों में रहा वैसा ही साल में रहेगा। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं उनकी। हमारे पास खादिम आला तो नहीं है, लेकिन हमारे पास उनकी एक डमी ज़रूर है। आपको उनसे मिलवाते हैं और उनको ये मायूस कुन खबरें भी हम सुनवाते हैं कि आने वाले साल में भी उनका कोई स्कोप नहीं है। तो तशरीफ़ लाते हैं खादिम आला। ਉਸਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਓਏ ਹਵਾ ਪੜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? खबरां तो खैर ਦੀਆਂ ਨੇ लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। जून तक पुट्ठा ही नहीं हो रहा तो किवें बनाइए? सितारा कह रहे हैं यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੱਕ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। और जाते हुए गाना भी गाते हुए जाएं, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। मैं फिर जाती बार कह के जाऊंगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। ਇਹ ਭਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ? क्यों? ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? मदन साहब, ये खबरें काफ़ी गर्म हैं कि पीपल्स पार्टी की डील हो रही है। आने वाले साल में बिलावल का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जरदारी साहब के केसेस के हवाले से कोई मामला ठंडे होंगे? देखिए, पाकिस्तान मेरा ख्याल दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सवाए नवाज शरीफ साहब के फादर टाइमिंग कोई ऐसा बड़ा आदमी कभी नहीं पकड़ा गया। सो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि उन पर कोई ऐसे केसेस चलेंगे। हाँ, ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये जो भी साल गुजरेगा इसमें सिस्टम चेंज होने में डेफिनेटली खबरें आपको लगेंगी कि सिस्टम चेंज हो रहा है। उसमें सिस्टम चेंज होने में मैंने पहले भी कहा कि पार्टीज़ पाकिस्तान में दो ही हैं, नून लीग रह जाएगी और पीपल्स पार्टी। तो कहीं ना कहीं इनका स्टेटस होगा। अगर आप ये समझना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं कि बिलावल एज ए प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, इसके चांसेस नहीं है। और आसिफा भुट्टो के, क्योंकि उनको भी तो सियासत उनको में तो ले आए हमने हमेशा ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ने कहीं भी सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, कोई अपना मकाम बनाना है, कोई स्टेटस बनाना है, लोगों को पुल करना है, तो उन्हें डेफिनेटली आसफा भुट्टो को लाना पड़ेगा ही। उन्हें लॉन्च भी उन्होंने किया था, मगर प्रॉपर लॉन्च मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी और उनका मुस्तकबिल होगा। बट आई डोंट थिंक बिलावल का नहीं होगा। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की कौमी जमातों में से एक है, पाकिस्तान की बात करती है, एक अहम जमात है। 17 तारत का इस पर इफेक्ट है। और ये जो साल 2022 है, मैंने बताया कि इसका जब हम एक अदद निकालते हैं सबको जमा करके तो 6 बनता है। 6 का अदद जो है वो पीपल्स पार्टी के अदाद से हम आहंग है। अच्छा। उससे इन हारमनी है। इसका मतलब यह है कि इस साल में पीपल्स पार्टी अपनी नई एक्टिविटीज़ शुरू करेगी, उसमें एक जान पड़ेगी, वो सारे सूबे में जाएगी। पीपल्स पार्टी बहुत बुलंद नारे लगाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इस साल में उनको कोई इक़्तिदार मिल जाएगा। पाकिस्तान लेवल पर सिंध में तो हैं ऑलरेडी वो, या मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो कोई इक़्तिदार में नेशनल सतह पे आ जाएंगे। जिस स्टेटस पे हैं वो उसी स्टेटस में रहेगा। अलबत्ता ये है कि चूँकि प्लानट एक औरत का प्लानट है, एक मोनस प्लानट है जो कि साल की रूलिंग कर रहा है 2022 में 6 का। अच्छा। अल्टीमेट मतलब ये है कि आसफा भुट्टो और जो खातीन की आदत है वो पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में बिलखसूस जो है वो प्रोमिनेंट होगी, और इस साल में ऐसी क़यादत आएगी जो कि आइंदा पाकिस्तान में प्रोमिनेंट होगी। मतलब आप दोनों मुत्तफिक हैं कि इस साल में पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो का कोई बड़ा रोल नहीं है?
नहीं, बड़ा रोल तो है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए या वो आ जाए, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, पजीराई पंजाब में उन्हें मिलेगी? बिल्कुल कोशिश वो बड़ी कर रहे हैं। मिलेगी। नाज़रीन, नए साल का खुसूसी शो तारों से करें बातें आप देख रहे हैं। अपने मेहमानों की एनर्जी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं मजहर राही साहब का खूबसूरत सा गीत। और मजहर साहब जो गाना गाने लगे हैं, ये मेरी तरफ से जवेरिया को डेडिकेट किया जा रहा है और उनके डैडी से पूछकर किया जा रहा है। ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਬੁੱਢੀ ਆਟਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ 1500 ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਸਕੂਨ ਆਉਣਾ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। डैडी तेरा गलियां च डू डू करता फिरता, उन्हें जाके कुछ अभी ये भी पूछ लें उनसे कि वो गाना कौन सा गाने वाले हैं, कोई मरने मराने वाला गाना ना हो, कोई सैड सॉन्ग ना हो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਡੈਡੀਕੇਟ। ਉਹਦਾ ਗਾ ਦੋ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਵਾ ਬਾਬਾ। या वो गा दो बाबुल की दुआएं लेती जा।